Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Let's wait for a minute for others to join in, those who are still joining. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. I'm back. कैसे हो? हलवाई ठीक? ठीक है ना? अरे कनेक्शन कर देंगे। Okay, shall we log the meeting now? Yes, sir. Meeting log. I'm muting all. Okay. Now I'll unmute 5 students. Those who want to participate in the discussions, they can click on raise hand. I'll unmute 5 of them. Good afternoon, sir. Good afternoon, Saksham. Good afternoon, sir. Good afternoon, Gracie. Good afternoon, Saloni. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dhvani. Jayant, sorry. Good afternoon. Good afternoon, Dhvani. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So let's start now. Do you remember what we had discussed in the previous class? Yes, sir. Tell me, what all did we discuss? So, how does the social environment affect the business? Right. And what are the main components under social environment? So, traditions, Yes. So, education, Cultural values. education, cultural values, Education. education, increasing working women, Then social trends. Yes, sir. yes, sir. Next point is so increasing working women, increasing working women, increasing life expectancy. We discussed all these points. Yes. No? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sometimes a question comes where some situation is given and you have to identify which dimension of business environment it will come in. So how to choose that? Sometimes the wording is tricky. You have to read the question very carefully and identify the most important and the latest, most recent cause given in the question and identify the dimension on that basis. The same situation with different wording can come under different
dimensions of environment. Take any example. Take any example of recent environment. Sir, Corona. Coronavirus is spreading, right? Which, Yes, sir. if we just say this much, that coronavirus is spreading, so which dimension or which environment does it come under? Sir, A disease is spreading in the society. Yes. So which So- environment? it will come social environment. Dependency on Social social environment. trends. Absolutely. Social environment. It's something happening in the society, social environment. Now, if I add another line to it, because of spread of coronavirus, the government announced a lockdown. Now, under which environment? So The political environment. The political. the Yes, social. Social. If some political party would have said it should things should be locked down. Okay, let me change the wording a bit. Coronavirus spreading in the society. The opposition party suggested that the government should immediately impose lockdown. Which environment? Political. environment. Political This is the environment. political Absolutely correct. environment. Political environment, because a political party is suggesting, right? Now, next day, the government, the prime minister gives a speech and he announces that lockdown will be implemented from midnight that day. So your voice is not audible. My voice is not audible. I think some issue with Yes, the. sir. Now I think, Yes, sir, your network is low. yeah, it seems so. These days, so many people are online at the same time, so sometimes internet becomes slow. Now, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when the prime minister announces the lockdown, he says that only essential services will be allowed, nothing else will be allowed from midnight. Now, which environment? So social environment. No. Environment. Anyone else? The social environment. Nahin. Social, sir. If anyone opens, let us say, a garment showroom, what will happen? Once the lockdown has been announced, what will happen? there's some action, legal environment. Yes, legal action बोलते ही legal environment ध्यान में आ गया. So whenever government Yes. issues an order, lockdown is a government order. Whenever a law is passed Yes. or an order is placed, government regulation एक point था ना legal में. But sir, it's affecting the society. Yes, the disease is affecting the society, and the decision of the government to lock down everything except essential goods and services, that is a government order, a government regulation. So that comes under legal environment. और लीगल एनवायरनमेंट को पहचानने का एक और बड़ा सिंपल तरीका है. फर्स्ट इज, या तो कोई लॉ की बात होगी, या किसी गवर्नमेंट ऑर्डर की बात होगी, या किसी कोर्ट केस की बात होगी. ये गवर्नमेंट ऑर्डर में आ गया. दूसरा तरीका है लीगल एनवायरनमेंट को पहचानने का कि ये सोचो कि इस चीज की वायलेशन पे कोई पनिशमेंट होगी क्या. इफ यस, देन इट इज लीगल एनवायरनमेंट. बिकॉज किसी भी लीगल फैक्टर को अगर हम वायलेट करते हैं, लॉ को वायलेट करते हैं, ऑर्डर को वायलेट करते हैं, देन देयर इज अ पनिशमेंट एसोसिएटेड विद इट, राइट. सो नाउ इट विल कम अंडर लीगल एनवायरनमेंट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर. क्लियर? Okay, sir. Okay. Suppose the government lockdown हो गया, legal में आ गया. Now because of, I add another line to it now. Many businesses are shut down because of lockdown temporarily, and they are incurring losses because of it. So
Now which environment? Social environment. नहीं, सोचो. Sir, economic environment. Yes, economic environment. Businesses Yes, shut down है, economic. economic activity बहुत सारी बंद है, losses हो रहे हैं. All this comes under economic environment. ठीक है? Because of this lockdown, right now what are we doing? So studying We are on studying through online classes. online classes. Online. इससे पहले ऐसा कभी हुआ था? No, sir. No. नहीं. Because of lockdown, now the offices which are closed, their employees are working from home, online. Schools Yes, are sir. closed, Yes, sir. so we are having these online classes, right? So which environment does this come in? The technological environment. Excellent. Yes, sir. Yes, excellent. Technological environment. So you see the same thing, same situation with different wordings, it comes under different dimensions. This whole paragraph may be given to you that a disease spreading in the society, the opposition party asks for a lockdown, then the government announces a lockdown, many businesses are shut down, online classes and online work going on. Now the question may ask you to identify various dimensions quoting lines. So in that case, you have to quote a line. Whenever a question asks you to quote a line, what you have to do is पूरी line लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले 3 words डॉट 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 लास्ट के 3 words उस लाइन के. ठीक है? आपने कोट किया, फॉर एग्जाम्पल अ डिजीज डॉट 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 इन सोसाइटी, तो और कोट कर दिया सोशल एनवायरनमेंट. ठीक है? फिर आपने कोट किया ओपोजिशन पार्टी डॉट 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 लॉकडाउन. कौन सा एनवायरनमेंट? Political environment. Political environment. Like this. Or the question may give you the entire paragraph or a few lines and ask you to identify only one dimension. Then you must identify the most recent one which has been talked about in the question. Right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So while we were discussing this, some people, some of you were giving answers and saying some other dimension, whereas the answer was something else. So you realize this can be confusing sometimes. Yes, sir. Right now it is confusing because we have just started this discussion. But slowly, when you read various questions, when you attempt various questions, you practice and your concept clarity is good, then you will not have problem. The only thing is you should read the question very carefully. And after reading it, you should try to analyze which is the most important one highlighted over here and the most recent one. ठीक है? अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना कह के छोड़ देता है that a disease was spreading because of which the government ordered a lockdown. Now you have to identify one dimension. Which one will you say? Sir, legal environment. Absolutely wonderful. आई बात Yes, सोशल sir. की भी, डिजीज स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बात आके रुकी कहां पे? अ लॉकडाउन ऑर्डर्ड. तो अगर एक आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर 2 एप्लीकेबल हैं. कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है एक से ज्यादा आंसर एप्लीकेबल होता है, तो उसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला और जिस पर ज्यादा हाईलाइट किया गया हो क्वेश्चन में उसे आइडेंटिफाई करना होगा. क्योंकि बात यहाँ पर आके रुकी गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन, तो हम यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा लीगल एनवायरनमेंट. क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Technological environment, next dimension. Technological environment deals with technology, changes in technology. What all comes under this? Let's discuss. First point, scientific improvements in producing. Manufacturing में भी बहुत टेक्नोलॉजी का रोल है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम टीचिंग सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं किसके थ्रू?
Online Online classes. teaching. Technology. Online classes, video conferencing के through. This is a video conferencing app we are using for conducting these classes. ठीक है? So from away from a physical classroom, we are having a virtual classroom right now. So technological environment. Similarly, these days most of the cars they are manufactured by robots. कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज आप देखोगे, टाटास की तो बहुत साल पहले से रोबोटाइज्ड है पूरी. उसमें बहुत कम काम होता है जो मैनुअली होता है. Am I audible? Yes, sir. Yes. राइट. सो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता जा रहा है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन इन द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स. प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट्स में, स्पेशली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. आप कार्स देखो, आज से 10 साल पहले जो फीचर्स आते थे कार्स में, फिर कौन से फीचर्स आने लग गए, और आजकल लेटेस्ट क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं. कार्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, ठीक है, उसके अलावा सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं. सो मेनी न्यू फीचर्स आर कमिंग इन. सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ टेलीविजन, there was a time around 20-30 years back when we used to have only black and white televisions. The era of color televisions. Color television भी वो इतने बड़े वाले बॉक्स होते थे पहले. Do you remember? Yes, sir. रिस्पॉन्स दे दिया करो जल्दी से. मुझे लगता है कि शायद आवाज मेरी नहीं जा रही है, रिस्पॉन्स नहीं आता है तो. हाँ, तो वो इतने बड़े वाले बॉक्सेस जो होते थे, उसके बाद फ्लैट स्क्रीन आने लग गए, स्लिम हो गए टेलीविजन्स, ठीक है, वॉल माउंटेड हो गए. Yes, sir. उनमें भी फिर नई टेक्नोलॉजी आई, डीटीएच. पहले केबल होता था, फिर डीटीएच आया, अब स्मार्ट टीवी आ गए हैं, टीवी स्टिक्स आ गई हैं, इंटरनेट टेलीविजन्स आ गए हैं. सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर कमिंग इन प्रोडक्ट्स. थर्ड वेरी गुड एग्जांपल वी कैन टेक इज मोबाइल फोन्स. जब मोबाइल Yes, फोन sir. इंट्रोड्यूस हुए थे 90s में, तो एक ब्रिक के साइज का फोन होता था, ईंट के साइज का फोन होता था, और उसके आप ब्लैक एंड व्हाइट होता था, कलर स्क्रीन नहीं होती थी, और उसमें सिर्फ कॉल और एसएमएस की ऑप्शन होती थी, नथिंग एल्स. फिर धीरे धीरे फोन्स का इंस्ट्रूमेंट का साइज कम होता गया, फीचर्स बढ़ते गए, इंटरनेट भी आ गया, मल्टीमीडिया भी आ गया, रेडियो भी आ गया, ठीक है, आज की डेट में. और फिर सोशल एप्स भी आ गई, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड सो ऑन. सो Yes, this is sir. how technological changes are taking place in products. Third point. Excuse me, sir. Yeah. Sir, Arshit was asking that diesel buses बंद होने के केस में, Your name? sir, Arshit was asking कि I'm asking diesel your buses name. I'm asking your name first. Dhwani. Dhwani, yeah. Speak. सर, डीजल बसेस बंद होने वाले केस में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, पर अगर कोई डीजल बसेस यूज करेगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, तो लीगल एनवायरनमेंट होगा. Yes. तो सर दोनों में से कौन सा होगा? Yes. ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला जो पॉइंट है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेनली लिखने के लिए है. एक्चुअली ये आना चाहिए लीगल में ही, क्योंकि वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस में ही कवर हो जाता है. तो जब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है, केस स्टडी आती है, जैसा आपने एग्जांपल दिया, डीजल बसेस बैंड, दे हैव टू बी रन ऑन सीएनजी. तो व्हेन दे हैव बीन बैंड, दैट मींस लीगल एनवायरनमेंट. सो वी विल से इट विल कम अंडर लीगल एनवायरनमेंट, नॉट पॉलिटिकल. पॉलिटिकल हम Okay, केस स्टडी में तभी कहेंगे जब किसी इलेक्शन की बात हो, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात हो, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा कहा, सिर्फ कहा की बात हो, ऑर्डर पास किया कि नहीं. जब तक सिर्फ वो कह रहे हैं तब तक पॉलिटिकल है. जैसे ही उससे रिलेटेड ऑर्डर आ गया या लॉ आ गया तो वो लीगल हो गया. ओके सर. एनी अदर डाउट?
No, sir. No, No, sir. sir. Okay, good. So we move on to next point, innovations in marketing. मार्केटिंग पहले कैसे होती थी? टीवी पे ऐड दे दिया, रेडियो पे ऐड दे दिया, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे दी, कुछ स्कीम्स निकाल दी, तो उसके थ्रू मेनली मार्केटिंग वाज अबाउट ऑल दिस. नाउ विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में भी इनोवेशंस आई. ऑनलाइन रिजर्वेशंस यू कैन मेक फॉर एयरलाइंस, फॉर रेलवेज, एंड अभी तो खैर सब कुछ बंद है लॉकडाउन में. अदरवाइज बिफोर दिस लॉकडाउन, since several years, do you know which was the largest e-commerce website in India doing the maximum business every day? No, sir. Yes. Forever living. Pardon? Sir, kindly repeat the last statement. Your Which- voice is unclear. Okay. I'm asking you to guess which website before the lockdown was making maximum online transactions, maximum e-commerce business per day. Before the lockdown. Louder. Make a guess. Don't worry. Even if you are wrong, doesn't matter. Nothing. Don't know. Okay. It was IRCTC. IRCTC stands for? Sir, no idea. No idea. IRCTC की साइट पे होता क्या है वो मालूम है? उसके थ्रू क्या होता है? नहीं sir. Conference No, call. sir. International conference call. अच्छा, फुल फॉर्म बताता हूँ, उससे आपको शायद आइडिया लगेगा. इंडियन रेलवेज एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. IRCTC, Okay. Indian Railways and Catering. Indian IRCTC, Indian Railways and Catering. I think something like this. I'm getting confused now, but it is the site of Indian Railways. Yeah, Indian Railways, Catering. Okay. And Tourism Corporation. Yeah. Okay. I'm forgetting the exact full form, but it is Indian Railways for sure for the first two words, Indian Railways. तो रेलवे रिजर्वेशन की साइट है वो, IRCTC की साइट जो है. रेलवे रिजर्वेशंस, IRCTC के अपने टूर पैकेजेस हैं उनकी रिजर्वेशंस, और इसके आने से पहले, ऑनलाइन रिजर्वेशन आने से पहले लंबी लंबी क्यूज लगती थी ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए रिजर्वेशन सेंटर्स के बाहर. अब घर बैठे लोग इजीली, आपने अपना सोर्स स्टेशन आप एंटर करो, डेस्टिनेशन जहां पे आपको जाना है एंटर करो, इट विल शो यू अ लिस्ट ऑफ वेरियस ट्रेन्स अवेलेबल. फिर जोन सी ट्रेन में, जोन सी क्लास में आप ट्रेवल करना चाहते हो आप सेलेक्ट करो, डेट सेलेक्ट करो, it will show you the number of seats available, and if it suits you, you can book online immediately. तो जो जिस काम के लिए कई घंटे लग जाते थे पहले लाइनों में, वो काम घर पे बैठे हुए 10 मिनट में हो जाता है. This is the effect of technology. Online reservations. Similarly, airline reservations online है mostly. ठीक है, इवन बोर्डिंग पास भी आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो, अपना प्रिंट कर सकते हो, तो वहां पे आपको बोर्डिंग पास के लिए भी किसी कियोस्क पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा. देन द फर्म्स आर एडवर्टाइजिंग ऑन वेरियस वेबसाइट्स, थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया. ऑल दीज आर इनोवेशंस इन मार्केटिंग. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, Yes, sir. ओके. कुछ सोच से Sir, लग but what was the reference of IRTC to lockdown? नथिंग. आई जस्ट सेड, क्योंकि अब मैं आज की डेट में अगर आपसे पूछूंगा कि कौन सी सबसे ज्यादा वो ई कॉमर्स कर रही है साइट, तो आज की डेट में तो वो नहीं कर रहे ना, क्योंकि रेलवेज बंद है अभी. इसलिए मैंने कहा था बिफोर लॉकडाउन कौन सी कर रही थी सबसे ज्यादा. Okay. राइट. Yeah, the full form is Indian Railways Catering and Tourism Corporation. I remember now.
Indian Railways Catering and Tourism Corporation. Next point, new techniques of operating business. ERP के बारे में आप सबने सुना है? Yes, Yes, sir. sir. क्या होता Yes, है? sir. What is ERP? ER? What is ERP? So your voice is not clear. I cannot hear you. I'm asking what is ERP? So it is a resource planning software. Yes. Our school is also using one. Yes, sir. आपने अपना Yes, sir. रिजल्ट ERP के साइट पे ही देखा था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? फिर आपके पास ERP से मैसेज भी आया होगा अभी 1-2 दिन पहले स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का, Yes, sir. right? So this is how ERP means enterprise resource planning. Resource planning. Yes. A computerized system where all the processes of the organization are computerized and linked with each other. ठीक है? तो इसका मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं ERP का. इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं. आप किसी स्टोर पे जाते हो, जैसे बिग बाजार पे गए आप, ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स अपने ट्रॉली में रखे, बिलिंग काउंटर पे आए, उसकी बिलिंग कैसे होती है? डज द कैशियर एंटर एवरीथिंग इन द कंप्यूटर मैनुअली? No, sir. Sir, can you please? फिर कैसे होता है? क्या होता है? So they scan the barcode, I think. Yes, they scan the barcode. There is a device they use to scan the barcode of the things, and automatically in their system, the name of the Yes. product, the price, everything is displayed. And simultaneously bill is prepared. Right? अब ये तो हमें दिख रहा होता है. इसके अलावा उनके कंप्यूटर जो ERP सिस्टम है उनका क्या क्या कर रहा होता है? जैसे ही वो बिल बना, वो उनका एक स्टॉक फाइल होती है. स्टॉक रजिस्टर में से वो उन आइटम्स को रिड्यूस करता जाता है कि ये चीज इतनी सेल हो गई, ये चीज इतनी सेल हो गई, तो इसका स्टॉक इतना कम हो गया, इसका स्टॉक इतना कम हो गया. तो उनका स्टॉक साथ साथ अपडेट हो रहा होता है, और उनके सिस्टम में साथ के साथ उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही होती हैं सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेल की. साइमल्टेनियसली अगर किसी चीज का स्टॉक बहुत कम हो गया है, जो उन्होंने पहले से फीड किया हुआ होता है सिस्टम में कि कितना कम हो जाए, तो वो उनकी स्क्रीन पे जो परचेज डिपार्टमेंट है उनकी स्क्रीन पे हाईलाइट होना शुरू हो जाता है कि दिस थिंग इज द स्टॉक इज वेरी लो, रीऑर्डर नाउ. तो वो इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और मंगवा लेते हैं. सो दिस इज हाउ जस्ट अ सिंपल स्कैनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी सी leads to so many things being updated automatically. This is called ERP. Various systems, accounting system, billing system, stock updation system, all are interconnected. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक्स यूज हो रही हैं आजकल? कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में. देयर इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, RFID attendance system, which you have experienced recently. CCTV cameras are there, video conferencing is there. So all these are new techniques of operating business which have come into scenes in recent years. New payment mechanisms are also there. Earlier, to make payment, there were mainly two options, either cash or check. Now, these days we have internet banking, we have debit cards, we have online wallets, we have UPI. So many online payment options are also there. Clear? Yes, sir. So this all comes under technological environment. Any doubt in technological environment, anyone? No, sir. No, sir. Okay. So we move on to the last dimension of business environment, that is economic environment. ठीक है, political हो गया, social हो गया, legal हो गया, technological हो गया. So fifth one is economic environment.
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं. Let's discuss them one by one now. First is existing structure of economy. What do we mean by structure of economy? Anyone? Jayant? Sir, structure means हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? So structure means how basically everything is there in our economy, the very basics of the economy, like maybe the prices of everything, Yes. the rate of inflation, and Right. rest Right. of the things combined, the prices of stuff. Okay. आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पढ़ा है? Yes, sir. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? जयंत, Yes, sir. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है? Capitalistic. Where Directly means of production are, most of the means of production are in the private hands. गवर्नमेंट अपने हाथ में बहुत कम चीजों की प्रोडक्शन और कंट्रोल रखती है, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और ज्यादा फ्रीडम होती है प्राइवेट सेक्टर को, लाइक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? Most of the economic activities are undertaken by the government. So government controls most of the things, and government operates activities with welfare motive. And mixed economy में क्या होता है? हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी मींस Sir, मतलब there's some both good the sectors have. sir, both the sectors have ownership both of the some goods and sectors services. coexist. Yes, both the sectors coexist. जिन्होंने शुरू में हैंड रेस किया था और मैंने उन्हें अनम्यूट किया हुआ है, दे कैन लोअर देयर हैंड्स नाउ. इट्स कंटिन्यूअसली शोइंग देयर हैंड्स रेजन. उसमें दोबारा आप क्लिक किया. गुड. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट. दे गो साइड बाय साइड. कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं. फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में एयर इंडिया गवर्नमेंट का है, बाकी जो एयरलाइंस हैं वो प्राइवेट है. ठीक है, चाहे वो जेट एयरवेज तो खैर अब बंद हो गया, स्पाइस है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, विस्तारा है, ऑल दीज आर प्राइवेट. सिमिलरली इंश्योरेंस के फील्ड में, लाइफ इंश्योरेंस में LIC इज गवर्नमेंट कंपनी, अदर कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज. तो कुछ टेलीकम्युनिकेशन में MTNL, BSNL, these are government companies. Airtel, Vodafone and others, they are private companies. So both private and government sectors coexist. अब इसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है? So Sir, if most of the companies are privatized, so sir, as a private individual, my motive will only be profit earning. I will not consider the welfare aspect. And अगर सारी गवर्नमेंटाइज्ड हो गई, तो अगर सब गवर्नमेंट ओन करेगी तो सिर्फ वेलफेयर होगा और ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे. तो अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो प्रॉफिट भी होगा और वेलफेयर भी होगा, इन माय ओपिनियन. राइट. इसको और थोड़ा फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक आएगा, उसमें इसकी और डिटेल में हम जाएंगे. बट यस, फॉर द टाइम बीइंग, अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो बिजनेस एंटरप्राइजेस पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी, उनके पास फ्रीडम कम होगी. देयर विल बी लेसर एरियाज इन विच प्राइवेट सेक्टर कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. If capitalistic economy,
then more freedom, maximum freedom to private enterprises, and they can operate in most of the activities. Mixed economy, there is a balance. Some activities in the government and remaining private, and some controls of the government are there, but otherwise there is sufficient freedom. Yeah. Next point is saving and investment. If saving and investment in an economy are more, then what happens? Economic growth. Economic growth. Saving investment ज़्यादा होगी तो business grow होंगे. It is good for business. Yes, sir. And if saving and investment rates are low, So then the business is economic, may incur losses and नहीं losses तो जरूरी नहीं है, but yes, less funds will be available for the business they- to take as loan and to invest in business. yes. Right. Next is extent and quality of infrastructure facilities. What is infrastructure? Sir, the internal surroundings or the basically the समझ नहीं आ रहा कैसे explain करूं. जैसे So working surroundings, आपकी जो चेयर है जिसपे आप physical working surroundings. लेग्स उसका Yes, इंफ्रास्ट्रक्चर है, sir. मतलब जिस पर वो टिका हुआ है. तो इकोनॉमी किस पे टिकी होती है? ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे, बैंकिंग, इंश्योरेंस. सो दीज आर कॉल्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो ये जितनी अच्छी होंगी किसी इकोनॉमी में, बिजनेस फॉर्म्स के लिए उतना अच्छा होगा. अच्छा होगा, उतना कन्वीनियंट होगा बिजनेस करना. ठीक है ना? Flourish होगा business. Yes, sir. हाँ, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप नहीं होंगी किसी कंट्री में, तो वहां पर बिजनेस करना मुश्किल होगा सर. मुश्किल होगा. और सिर्फ कंट्री नहीं, इट मे डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन आल्सो, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट sir. आल्सो. देन कम इंटरेस्ट रेट्स. इफ इंटरेस्ट रेट्स आर लो, व्हाट इज द इफेक्ट? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने. Sir, if we So then there are will be more lending and borrowing. Yes, yes, more lending and borrowing. Very good. So borrow कौन करेगा बैंक से? so the common man So or the firms. entrepreneurs and common people. नहीं, borrow mainly करते हैं बिजनेस हाउसेस, Firms. बिजनेसेस. ठीक है, तो बिजनेसेस ज्यादा लोन ले पाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा Yes, लोन sir. ले पाएंगे तो अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे. Yes, sir. ज्यादा Yes, sir. इन्वेस्ट कर पाएंगे तो उनका बिजनेस ग्रो होगा और ज्यादा. Yes, sir. Yes, sir. ऑन द सेकेंड हैंड, जो हाउस होल्ड्स हैं वो देखो सेविंग मेनली आती है हाउस होल्ड से, और लोन्स की डिमांड आती है मेनली बिजनेसेस से. Business firms, sir. ठीक है, तो हाउस होल्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है उन्हें, तो वो सेविंग कम करना चाहेंगे. Yes, sir. तो बाकी Yes, पैसे का sir. क्या करेंगे? वो स्पेंड करेंगे. किस पे स्पेंड Yes, करेंगे? sir. To वेरियस render goods and सर्विसेज पे. तो उससे भी बिजनेस Yes, को फायदा होगा. तो इंटरेस्ट लो होने से एक तो चीपर लोन्स अवेलेबल होते हैं, दूसरा डिमांड बढ़ रही होती है इकोनॉमी में, सो इट इज गुड फॉर बिजनेस. एंड वाइस वर्सा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? तो लोन्स कम हो जाएंगे और सेविंग ज्यादा होगी और बिजनेस को लॉसेस होंगे क्योंकि Yes. गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी. हाँ, सीधे लॉसेस पे मत पहुंच जाया करो. प्रॉफिट, हम क्या ये कह सकते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा. ठीक है, जरूरी नहीं है लॉस. ओके सर. ठीक है, ओके सर. क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट हाई है तो बिजनेस कम लोन ले पाएंगे, कम लोन ले पाएंगे तो कम इन्वेस्ट कर पाएंगे बिजनेस में. ऑन दी अदर हैंड, लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो स्पेंड कम करेंगे, तो डिमांड कम होगी थोड़ी. So that is harmful for the business. Next point is inflation. Inflation means? So the rising of prices. Yes. Consistent rise in prices is called inflation. Inflation. ठीक है, जब प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं उसे कहते हैं इन्फ्लेशन. हिंदी में हम इसे कहते हैं इकोनॉमी में पैसा आना. नहीं,
सर ऐसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। महंगाई महंगाई सर, महंगाई महंगाई यस इन्फ्लेशन इज महंगाई ठीक है यस inflation is the rate of increase in prices it is the रेट ऑफ repeat इंक्रीज इन Rate of प्राइसेस increase in rate price. of increase in prices ठीक है प्राइसेस तो अगर मैं कहता हूं इन्फ्लेशन रेट इज 10% इसका मतलब प्राइसेस आर the इंक्रीजिंग। prices have 10% been के रेट पे increased बढ़ by रहे हैं 10%. यस इसका Yes, मतलब sir. 10% के रेट पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं राइट अच्छा समटाइम्स व्हाट हैपेंस न्यूज में आता है कि इन्फ्लेशन कम हो गई ठीक है तो ऐसे में कई लोग आसपास बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई लेकिन महंगाई तो वैसी की वैसी है प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं ये कैसे हो सकता है गवर्नमेंट झूठ बोल रही है न्यूज में इन्फ्लेशन कम हो गई Comparison मतलब किसी पहले के मुताबिक रेट कम हो गया होगा. यस एब्सोल्युटली तो बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स हमारे लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है जो कॉमर्स फील्ड से नहीं है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे तो समझ में आती है बात कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो गई है मैंने तो कल ही सपोज 1 किलो ये चीज ली थी 100 रुपए में और आज मैं 105 में लेके आया हूँ इन्फ्लेशन कम कहाँ हुई है लेकिन इन्फ्लेशन क्या है रेट ऑफ इंक्रीज है इंक्रीज नहीं है रेट ऑफ इंक्रीज है तो अगर सपोज पहले 10% से प्राइस बढ़ रहे थे अब 5% पे बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन रेट कम हो गया इन्फ्लेशन कम हो गई लेकिन बढ़ तो अभी भी रहे हैं ना Yes, sir. ठीक है Yes, तो sir. इन्फ्लेशन के कम होने का मतलब प्राइस का कम होना नहीं है प्राइस में होने वाले इंक्रीज के रेट का कम होना है गेटिंग इट Yes, sir. Yes, sir. okay so if there is inflation high inflation what is the effect on business ट्यूनिंग ऑफ बिजनेस। how Will be less profits because Sir, the they'll- demand of products will decrease. The demand will decrease because the prices have increased and cost of production भी बढ़ जाएगी क्योंकि raw material के भी prices बढ़ चुके होंगे. एब्सोल्युटली एक तरफ कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल सारी रिसोर्सेज के कॉस्ट बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया दूसरी तरफ Yes, sir. क्योंकि प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो जाएगी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा ना आपने मोर द प्राइस लोअर द Yes, क्वांटिटी तो Yes, sir. डिमांड Yes, sir. से भी फर्दर कुछ प्रॉफिट कम हो सकता है सो इट इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस अगर लो इन्फ्लेशन हो तो देन इट इज वाइस वर्सा कि ठीक है कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है डिमांड प्राइसेस भी ज्यादा नहीं बढ़ रहे तो डिमांड पे भी कुछ खास फर्क नहीं आ रहा दैट विल बी गुड फॉर बिजनेस एंड फॉर हाउस होल्ड ऑल्सो एवरीवन तो इन्फ्लेशन Yes. ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम लेवल जिस रीजन में जिस कंट्री में जिस स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हो आपके टारगेट कस्टमर्स का इनकम लेवल आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है क्या Yes, sir. Yes, sir. कैसे Sir, because higher the income, higher will be the demand. They'll have the potential to buy stuff, एब्सोल्युटली the producers. अपना Yes, नेम बोल दिया sir. करो Sir, Gracie. ग्रेसी यस वेरी गुड Sir, Gracie. पार्डन Then she told her name. ग्रेसी ना Yes, sir. या गुड ग्रेसी तो इनकम लेवल जितना हाई होगा लोगों का उतनी ज्यादा वो गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेंगे उतना ज्यादा बिजनेसेस ग्रो होंगे एंड वाइस वर्सा Yes, sir. देन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की कई इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं पहली होती है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है फिस्कल पॉलिसी एनी आइडिया Sir, maybe the policy for the year, accounting year. ओके बजट सुना है Yes, sir. Yes, sir. बजट को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी Okay. क्या होता है बजट Sir, receipts और expenditures का एक
So the So, basic it's a standard set by the government for the revenue and expenditure. ओके, कब आता है sir, बजट? sir, gov- गवर्नमेंट का sir, बजट कब आता है? you सेंट्रल So every गवर्नमेंट। year. sir हाँ, एवरी पिछले ईयर 2 साल से फेब तो बिगनिंग ऑफ फेब में आ रहा है। 1 फरवरी को आता है अब हर साल, ठीक है? यस सर। 1 फरवरी को आता है। बजट होता क्या है? हम सपोज आप मार्केट जा रहे हो कोई चीज खरीदने, ठीक है? तो आप माइंड में कुछ लेके चलते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे ये 3-4 चीजें लेनी है, तो ये चीज इतनी रेंज तक ले सकते हैं, ये चीज इतनी रेंज तक ले सकते हैं, ऐसा कुछ माइंड में होता है? यस सर। Yes, sir. तो वही बजट होता है। अगर आप सिर्फ 2-3 चीजें लेने जा रहे हो तो आपके माइंड में ही होगा वो चीज बजट, तो उससे काम चल जाएगा। अगर थोड़ी लंबी लिस्ट है तो आप पेपर पे लिस्ट बना के लेके जाओगे, यस सर। ठीक है? तो वो आपका बजट है, और आपके माइंड में होगा कि मेरे पास टोटल कितना अमाउंट है जो मुझे स्पेंड करना है इन सारी चीजों पे। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कौन सी चीज किस प्राइस रेंज में आपको लेनी है, Yes, sir. ठीक है? ओके सर। इसी तरह से हम हाउस होल्ड में अपना बजट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कई बार आपको पता होगा ना, आपने पेरेंट्स से कोई चीज डिमांड करी, पेरेंट्स ने दिलवा दी। नेक्स्ट टाइम आपने कोई चीज डिमांड की, उन्होंने कहा नहीं अभी बजट में नहीं है। होता है ऐसा? यस सर। नहीं सर वैसे। होता है। तो इसका क्या मतलब होता है जब वो Yes, कहते sir. हैं कि नहीं अभी बजट में नहीं है? सपोज आपने 20,000 रुपीज की कोई चीज डिमांड की, उन्होंने कहा नहीं अभी बजट में नहीं है। डज दैट मीन कि उनके पास कैश, बैंक बैलेंस सब मिलाकर 20,000 रुपीज नहीं है? नो सर, ऐसा No, नहीं है। sir. ऐसा नहीं है, हो सकता है लाखों रुपए हो, लेकिन बजट में नहीं है का क्या मतलब है? हर हाउस होल्ड में सब लोग जनरली क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमारी मंथली इनकम कितनी है एस्टिमेटेड, तो हम इसमें से ग्रोसरीज में कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे, इसमें से कितना हम बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, इसमें से कितना हम आउटिंग्स पे स्पेंड करेंगे, और कितना हम सेव करेंगे। तो ये एक एस्टिमेट होता है कितना मिल्क पे खर्चा होना है, कितना किस चीज पे होना है, दैट इज अ बजट। तो अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो उनके मंथली एस्टिमेट से बाहर चली जाती है, तो वो कहते हैं बजट के बाहर है अभी, ठीक है? तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री का बजट बनाती है। क्या होता है उसमें? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? 1 Feb 2020 को जो बजट आया, दैट इज फॉर विच फाइनेंशियल ईयर? सर अप्रैल 1, 2020 टू मार्च 31, 2021। वेरी गुड, ठीक है? तो इसमें उन्होंने एस्टिमेट प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कहां कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कहां हम कितना उसमें से खर्च करेंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से? Sir, taxes, taxes, revenue fines. paid by the Yes, government. taxes, fines collected, any other revenue collected, ठीक है? Earnings of government companies, but main portion is from taxes, direct and indirect tax जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ करती है? सर जो गवर्नमेंट रोड बनाती है या फिर पार्क के लिए, यस, और रोड, कंट्री the हाँ, country Sir, development government के लिए facilities like schools. yes, yes sir, parks, roads, and there are a lot of free health services। जैसे सर अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके लिए भी इतनी हेल्थ सर्विसेज है which are free of cost। yes, very These are all good, provided by the government। ठीक है, वेरी गुड। अब गवर्नमेंट अगर, अब दो चीजें आ गई, एक तरफ टैक्स, दूसरी तरफ मतलब जहां से रिसीट आ रही है, दूसरा एक्सपेंडिचर। टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो क्या होगा? बिजनेस पे इफेक्ट, सर सेविंग्स कम हो जाएगी। सेविंग्स कम हो जाएगी, सेविंग्स कम, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। टैक्स ज्यादा पे होगा तो स्पेंड करने के लिए इनकम कम होगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड Yes, सर्विसेज विल रिड्यूस। डिक्रीज। ये डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स का इफेक्ट हुआ। अब आते हैं इनडायरेक्ट, जीएसटी का इफेक्ट। जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया प्रोडक्ट का, Yes, sir. डिमांड कम हो जाएगी प्राइस बढ़ सर। गया तो डिमांड कम हो जाएगी अगेन।
एंड वाइस वर्सा। टैक्सेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड। डिमांड कम होगी। अब आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी मतलब रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी। तो इस सब काम के लिए कुछ बिल्डर्स को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिलेगा, यस सर। है ना। कंस्ट्रक्शन Yes, में sir. जितना मटेरियल यूज होगा उतना इंडस्ट्रीज की, सीमेंट इंडस्ट्रीज की, बाकी के जो ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं उनकी सेल बढ़ेगी। यस सर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना होगा उतना बिजनेस की सेल बढ़ेगी, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। और जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करेगी उतना उनके लिए हार्मफुल है। यस सर। तो ये इफेक्ट हुआ फिस्कल पॉलिसी का। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉलिसी इज मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी इज द बैंकिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट which is regulated by the RBI on behalf of government. RBI. RBI stands Yes for, sir. Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. yes, Reserve Bank of India monitors the banking policy, right? Yes sir. अब मॉनिटरी पॉलिसी में आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पढ़ी हैं ये चीजें? No sir. कोई बात नहीं, इस साल पढ़ लोगे। No, sir. नहीं पढ़ी तो इस साल पढ़ोगे। Yes ये sir. क्या होता है, इनके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई मैनेज करता है इकोनॉमी में। जब आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है इकोनॉमी में, तो आरबीआई ये रेशियोज, ये रेट्स कम कर देता है। फॉर एग्जांपल बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ठीक है, अगर बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो आगे कॉमर्शियल बैंक्स भी अपने रेट बढ़ा देंगे जिसपे वो बिजनेस फर्म्स को लोन देते हैं। तो बिजनेस फर्म्स को लोन कम मिलेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है वो बैंक रेट को क्या कर देगा? कम कर देगा। बैंक रेट कम हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले पाएंगे आरबीआई से। कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले Sir, पाएंगे। your voice is not. यस, बोलो, कौन बोल रहा है? Sir, your voice was not audible. Gracie. ओके ओके, नाउ इज इट ऑडिबल? Yes, sir. ये मेरे इंटरनेट कनेक्शन में भी हो सकती है प्रॉब्लम। अगर सभी को प्रॉब्लम आ रही है तो, अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो उनके डिवाइस में इंटरनेट प्रॉब्लम, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्लो हो सकता है। दोनों तरफ से हो सकती है प्रॉब्लम। बाकियों को सुनाई दे रहा था क्लियर? Yes sir. बीच बीच में नहीं आ रही थी। हाँ, तो बीच बीच में अगर, Yes sir. बीच बीच में। ओके, तो बीच बीच में अगर वो सभी को नहीं आ रही है तो वो मेरे इंटरनेट कनेक्शन में स्पीड स्लो हो सकती है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं सुनाई दे रही है तो उनके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड स्लो हो सकती है। एनीवेज, कांट हेल्प इट। मैं ये कह रहा था, बैंक रेट आरबीआई क्या करेगा अगर उसने मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो? सर वो कम कर देगा बैंक रेट। एब्सोल्युटली, बैंक रेट को कम कर देंगे तो उससे कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लोन ले पाएंगे आरबीआई से। आगे वो बिजनेस फर्म्स को ज्यादा लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये बाकी सब चीजें हैं, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट। सर तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा करनी है तो दे आल्सो प्रिंट द मनी ना। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। व्हाई नॉट प्रिंट मनी? अदर्स रिस्पॉन्स, एक इससे मैं रिलेट करके एक बात कहता हूँ। हमारी कंट्री में इतनी पॉवर्टी है तो आरबीआई क्यों नहीं नोट्स प्रिंट कर करके गरीबों में बांट देता? सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। सबको 1-1 करोड़ रुपया बांट दो, 10-10 लाख रुपए, 1 करोड़ ना सही 10-10 लाख रुपए दे दो सबको, तो गरीबी खत्म हो जाएगी जितने भी गरीब हैं। क्यों नहीं? पता नहीं क्यों। फिर सबके पास पैसे होंगे तो फिर काम कैसे होगा? क्यों काम क्यों नहीं होगा? और भी तो कमाने हैं उन्हें, और कमाने के लिए काम करेंगे। लेकिन लोग छोटा काम नहीं करेंगे, मतलब
लोग सोचेंगे कि ये काम उनके हिसाब से नहीं है। अच्छा, ओके। और कोई रीजन इसके अलावा? ये भी हो सकता है सर ये। एकदम से डिमांड हर चीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये किसने बोला? सर ग्रेसी। हाँ, ग्रेसी, वेरी गुड। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कोई भी चीज बड़े लेवल पे समझनी मुश्किल हो ना, तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, फिर थोड़ी क्लियर हो जाती है। सपोज आपने एक लेट अस से फेट में स्टॉल लगाया भेलपुरी का, ठीक है। अब आपके पास इतना मटेरियल है कि आप लेट अस से 1000 प्लेट्स ऑफ भेलपुरी सेल कर सकते हो। एग्जांपल क्लियर? Yes, sir. sir. यस सर। 1000 प्लेट्स यू कैन मेक एंड सेल। आपने प्राइस रखा Yes. 10 रुपीज पर प्लेट, ठीक है। तो 10,000 रुपीज आ जाएंगे आपके पास एंड ऑफ द डे, Yes, sir. ठीक है। यस सर। आपने उसके लिए रखा है कूपन सिस्टम कि डायरेक्टली कैश नहीं लेंगे हम, पहले कूपन खरीदो 10-10 रुपए के, और फिर हम उसके कूपन के बदले में आप भेलपुरी ले लो, ठीक है। अब सपोज कूपन प्रिंट करते हुए आपने गिने ही नहीं कितने प्रिंट कर दिए। आपने सपोज आपने कूपन प्रिंट कर दिए 2000, आपके पास प्लेट्स अवेलेबल है 1000, लेकिन आपने कूपन प्रिंट कर दिए 2000 और बेच दिए। अब क्या होगा? 1000 वेस्ट। सर हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड, हमारे पास सप्लाई तो उतनी है नहीं और डिमांड ज्यादा हो गई। एब्सोल्युटली। तो वो मतलब जो पहले 1000 कस्टमर आएंगे उनके कूपन्स के बदले में तो उन्हें सामान मिल जाएगा, Yes. बाकियों के कूपन्स तो वेस्ट हो गए। Yes, sir. सेम थिंग हैपेंस इन एन इकोनॉमी। करेंसी नोट्स भी कूपन की तरह ही तो है कि उनके बदले में आप गुड सर्विसेज खरीद सकते हो। इकोनॉमी में अगर उतनी गुड सर्विस ही नहीं है और नोट ज्यादा प्रिंट हो गए तो क्या होगा? करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग नोट लेके घूम रहे हैं लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल रहे, फायदा क्या? Okay, या फिर sir. दूसरी चीज क्या होगी? अल्टीमेटली जब आप रियलाइज करोगे कि अच्छा कूपन्स डबल चले गए हैं, चलो प्राइस बढ़ा देते हैं, 10 से 20 हो जाएगा प्राइस, तो तब सब Inflation. कूपन्स पे। तो या तो प्राइसेस बढ़, ऐसे में क्या होगा अगर आरबीआई ऐसे ही करेंसी प्रिंट करता है और लोगों में बांट देता है, तो या तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो many people will not get anything in return of those currency notes. That is why RBI cannot just print notes and distribute. ठीक है। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था, मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए भी डायरेक्टली आरबीआई नोट्स प्रिंट करके नहीं बांट सकता। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। नेक्स्ट इज एक्जिम पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट अगर किसी चीज का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देती है तो उसके बिजनेस इफेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी चीज का इंपोर्ट लिबरलाइज कर देती है तो उन फर्म्स के लिए फायदा हो जाएगा जो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती हैं। सिमिलरली फॉर एक्सपोर्ट्स। क्लियर? Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो आज की डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं। Now I'll unmute all for asking your doubts. Now, any doubts, anyone, in whatever we have discussed today? No, sir. No, sir. नो सर। Sir? Yes. Sir Arshid. हाँ, अर्षित बोलो। जैसे अगर आरबीआई एक्सटर्नल प्रिंट कर लेती है पैसा ऑडियो क्लियर नहीं है आपका। क्या कर लेती है? अर्षित बोलो बेटा दोबारा। अगर आरबीआई एक्सटर्नल प्रिंट कर लेती है माइक से बहुत आ रही है डिस्टर्ब। बाकी लोग प्लीज चुप रहो जब एक कोई Yes, अर्षित। लुक
सर अगर आरबीआई ऐसे एक्स्ट्रा नोट प्रिंट कर लेती है सर, ये भी तो हो सकता है कि वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के बाहर किसी कंट्री में। हाँ, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि वो अपने डॉलर में कन्वर्ट करवाना चाहें, उसमें डॉलर ऐड। सर फिर डॉलर की वैल्यू ज्यादा चाहिए। हाँ, डॉलर का प्राइस और बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। यस, सर फिर डॉलर की वैल्यू वो कर प्राइस वो कर रुपये से ज्यादा। हाँ, प्राइस डॉलर का प्राइस रुपी टर्म्स में बढ़ जाएगा फिर बहुत ज्यादा, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। Any other doubt? No, sir. नो सर। कुछ आवाजें आ रही है पीछे, टीवी चलने की या कुछ म्यूजिक चलने की? सर वो तो सार तो जब आप क्लास में बैठे हो, ये जिसने भी चला रखे हैं, कोई एक दो स्टूडेंट्स ही होंगे, तो नहीं होना चाहिए ये चीज। ओके, एनी अदर डाउट, एनीवन? नो सर। No, sir. Okay, so we end today's meeting here. Thank you. Thank you so Thank you, much, sir. 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 थैंक यू सो मच।